Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's a English literature turn. So students, today we will English literature in our today's class. And students, today we are going to start a new chapter of our English literature book as we semester. And students, the number of this new chapter is chapter 5. And students, the name of the chapter 5 is A Good Play. Okay, so all students, please pay partial attention in your class and listen to my words clearly because today we are going to read chapter 5 A Good Play. And students, included in chapter 5 A Good Play, we will read poem, and after that we will read about the poet of this poem, and then we will read and note down poem and hard words of the chapter 5 A Good Play in our English literature notebook in our today's class. Okay, so all students, firstly look at this chapter 5 A Good Play. Okay, student, the name of this chapter 5 is A Good Play. means a good means अच्छा, play means students होता है नाटक या खेल. Okay, A Good Play it's mean एक अच्छा खेल, or we can say also that एक अच्छा नाटक. Okay, students, this chapter 5 A Good Play is based on sports. Okay, sports पे based है. Sports means खेलों पर ही based है. Okay, so students, turn your page forward and let's read this poem. Students, read a poem about the mischiefs of two friends. Okay, read means पढ़िए, आ means एक, poem means कविता, about means बारे में, the mischiefs it means शरारतों. Okay, of means का, two means दो, friends means दोस्तों या मित्रों. Okay, read a poem about the mischiefs of two friends. It's mean दो दोस्तों की शरारतों के बारे में एक कविता पढ़ी. Okay, so students, let's read this poem about the mischiefs of two friends. Okay, चलिए दो दोस्तों की शरारतों के बारे में इस poem को read करते. Okay, let's read this poem. We built a ship upon the stairs, all made of the back bedroom chairs, and filled it full of sofa pillows to go a sailing on the billows. Okay, we took a saw and several nails and water in the nursery pails, and Tom said, "Let us also take an apple and a slice of cake," which was enough for Tom and me to go a sailing on till tea. We sailed along for days and days and had the very best of plays, but Tom fell out and hurt his knee, so there was no one left but me. Okay, so students, now we are going to explain the summary of this poem. A Good Play. Okay, so students, let's see first number stanza of this poem. Students, so first number stanza is, we built a ship upon the stairs, all made of the back bedroom chairs, and filled it full of sofa pillows to go a sailing on the billows. Okay, we built a ship upon the stairs. Okay, we means हमने, built means बनाई. Okay, students, so a means एक, ship means जहाज, upon it's mean ऊपर, the stairs it's mean सीढ़ियों. Okay, we built a ship upon the stairs it's mean हमने सीढ़ियों पर एक जहाज बनाया. Okay, तो students, जो stairs नहीं होते हमारे होम पे, जो सीढ़ियाँ होती हैं ना जिसे हम जीने बोलते हैं, तो उस पर ये टू बच्चे हैं, टू बॉयज़ हैं. उन्होंने क्या किया, इन दो बच्चों ने, दोनों फ्रेंड्स हैं, इन्होंने क्या किया, स्टेयर्स पर एक शिप बनाया. ओके, जीनों पर, सीढ़ियों पर एक जहाज बनाया. ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स. ओके, ऑल मीन्स सभी, मेड ऑफ मीन्स बनी हुई थी. दी बेडरूम चेयर्स इट्स मीन पीछे के, मीन्स स्टैंड्स पीछे. ओके, बेडरूम में स्टैंड्स होते, बेडरूम में से इनका, चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ. ओके, बेडरूम, बैक बेडरूम चेयर्स इट्स मीन पीछे के बेडरूम की कुर्सियों से. ओके, ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स इट्स मीन सभी पीछे के बेडरूम की कुर्सियों से बना हुआ था. ओके, और वी कैन आल्सो दैट सभी पीछे के शयन कक्ष की कुर्सियों से बनी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, let's read next. And filled it full of sofa pillows. Okay, and means of filled means भरा हुआ, it means yeah, full of means पूरा, sofa pillows it's mean कि सोफा के पिलो से, पिलोस means होता है तकिया. Okay, and filled it full of sofa pillows it's mean, और इसे सोफा के तकिए से पूरा भर दिया. Okay, तो स्टूडेंट्स, से जो टू बहुत ही नॉटी बॉयज़ है, जो दो बहुत ही शरारती बच्चे हैं. ओके, जो फ्रेंड्स हैं आपस में, तो ये क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही मिस्चीफ से, बहुत ही शरारती हैं. ओके, और ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, स्टेयर्स पे जीने पर इन्होंने एक शिप बनाया. ओके, एक शिप बिल्ड किया, एक जहाज बनाया, और ये जो शिप था ना, ये बैक बेडरूम चेयर से बना हुआ था. ओके, पीछे जो बेडरूम था उसकी कुर्सियों से बना हुआ था. और फ्रेंड्स, फिर क्या किया उन्होंने, ये शिप को सोफ़ा के पिलो से पूरा फुल कर दिया. ओके, सोफ़ा के तकिए से इसे पूरा भर दिया. टू गो आ सैलिंग ऑन द बिलोस. ओके, टू गो इट्स मीन कि जाने के लिए. ओके, सैलिंग इट्स मीन कि नौकायान, ऑन द बिलोस. ओके, स्टूडेंट्स, हियर द मीन ऑफ बिलोस. बिलोस में स्टूडेंट्स होता है लहरों. ओके, हियर द मीन ऑफ बिलोस दैट वेव्स. वेव्स मीन्स लहरों. ओके, तो टू गो आ सैलिंग ऑन द बिलोस इट्स मीन लहरों पर नौकायान करने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, let's read this second number stanza of this poem. We took a saw and several nails
वी मीन्स हमने, टुक मीन्स लिया, ओके, टुक इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, ओके, आ मीन्स एक, सा, स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ सा, दैट एन ऑब्जेक्ट और अ टूल यूज टू कट वुड और एनीथिंग हार्ड, ओके, इट्स मीन लकड़ी या किसी कठोर या सख्त चीज को काटने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु या उपकरण को बोलते हैं हम सा, SAW सा, ओके। सा मीन्स स्टूडेंट्स होता है आरी, ओके, तो वी मीन्स हमने, टुक मीन्स लिया, टुक इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, आ मीन्स एक, सा मीन्स सारी, एन मीन्स और, सेवरल इट्स मीन मैनी कई, ओके, नेल्स इट्स मीन होता है कीले, ओके, वी टुक आ सा एंड सेवरल नेल्स, ओके, इट्स मीन कि हमने एक आरी और एक आरी और कई कीले ली, ओके, बहुत सारी कीले ली, एंड वाटर इन द नर्सरी पिल्स, एंड मीन्स और वाटर मीन्स पानी, इन मीन्स में द नर्सरी पिल्स, स्टूडेंट्स नर्सरी मीन्स स्टूडेंट्स होता है अ यंग चाइल्ड्स रूम, ओके, एक छोटे बच्चे के कमरे को बोलते हैं हम नर्सरी, ओके, पिल्स में स्टूडेंट्स होता है बकेट, इट्स मीन बाल्टी, ओके, तो स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ नर्सरी पिल, इट्स मीन जो छोटे बच्चों की गेम्स वाली खेलने वाली जो बकेट नहीं होती है, बाल्टी, ओके, जिससे छोटे बच्चे प्ले करते खेलते उसे बोलते हैं नर्सरी पिल्स, ओके, एंड वाटर इन द नर्सरी पिल्स, इट्स मीन कि और नर्सरी पिल्स में इट्स मीन छोटे बच्चों की बाल्टी में पानी लिया, ओके, एंड टॉम सेट, एंड मिस और टॉम मिस टॉम सेट मिस का, सेट इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ से मीन्स कहना, सेट मिस का, लेट अस आल्सो टेक, ओके, लेट अस आल्सो टेक, टेक मीन्स लेना, ओके, लेट अस आल्सो टेक, इट्स मीन कि हमें भी लेने दो, ओके, एंड टॉम सेट लेट अस आल्सो टेक, इट्स मीन और टॉम ने कहा कि हमें भी लेने दो, ओके, लेट अस मीन्स करने दो, ओके, हमें करने दो, तो और टॉम ने कहा कि हमें भी लेने दो या हमें भी करने दो, ओके, एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक, ओके, एन एप्पल इट्स मीन एक सेब, एंड मीन्स और अ स्लाइस ऑफ केक, इट्स मीन केक का एक टुकड़ा, ओके, स्लाइस मीन्स एक टुकड़ा या एक भाग होता है, एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक, इट्स मीन एक सेब और केक का एक टुकड़ा, ओके, विच वॉज इनफ फॉर टॉम एंड मी टू गो आ सेलिंग ऑन टिल्टी, ओके, विच मीन्स जो, वाज मीन्स था, इनफ, हियर द मीनिंग ऑफ इनफ दैट प्लेंटी, ओके, इट्स मीन कि बहुत सारी या पर्याप्त, ओके, एंड फॉर मिस के लिए टॉम मिस टॉम, एंड मिस और मी मिस मेरे, ओके, तो विच वॉज इनफ फॉर टॉम एंड मी, इट्स मीन कि जो टॉम और मेरे लिए पर्याप्त था, ओके, और वी कैन से आल्सो दैट जो टॉम और मेरे लिए काफ़ी था, ओके, बहुत सारा था, क्लियर, टू गो आ सेलिंग ऑन टिल्टी, ओके, टू गो इट्स मीन जाने के लिए, आमी से सेलिंग इट्स मीन नौकायान, ओके, टिल टी, ओके, मतलब टी, टिल मीन्स जब तक, टी, ओके, टी मीन्स चाय, ओके, तो स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ टिल टी दैट इवनिंग टाइम तक, ओके, तो टू गो आ सेलिंग ऑल टिल टी, इट्स मीन कि जो नौकायान पर जाने के लिए पर्याप्त था, काफ़ी था टॉम के लिए और मेरे लिए, टिल टी इट्स मीन चाय तक, ओके, इट्स मीन इवनिंग टाइम तक ये काफ़ी था हमारे लिए, एक एप्पल और केक का एक स्लाइस, ओके, students, let's see the third number stanza of this poem, which is last stanza of this poem. We sailed along for days and days and had the very best of place, but Tom fell out and hurt his knee, so there was no one left but me, okay, we means हम sailed, okay, here the meaning of sailed that चलते रहे, okay, along इट्स मीन साथ साथ, फॉर मीन्स के लिए, डेज मीन्स दिनों, एंड मीन्स और डेज मीन्स दिनों, ओके, वी सेल्ड अलॉन्ग फॉर डेज एंड डेज, इट्स मीन कि हम दिनों और दिनों तक साथ साथ चलते रहे, ओके, कई दिनों तक हम साथ साथ चलते रहे, ओके, डेज एंड डेज, एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस, ओके, एंड मीन्स और हैड मीन्स था, दी वेरी मीन्स वेरी बेस्ट, इट मीन्स बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छा, ओके, एंड ऑफ मीन्स का, प्लेस मीन्स स्टूडेंट्स नाटक, ओके, एंड या आप खेल बोल सकते हैं, एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस, इट्स मीन कि और नाटक का नाटकों का सबसे अच्छा नाटक था ये, ओके, और वी कैन से आल्सो दैट कि ये खेलों का सबसे अच्छा खेल था, ओके, जो प्ले कर रहे हैं ना इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बट मीन्स लेकिन टॉम फेल आउट, इट्स मीन गिर गया, एंड मिस और हर्ट, इट्स मीन फेल आउट, इट्स मीन बाहर गिर गया, एंड मिस और हर्ट इज नी, इट्स मीन कि उसकी घुटने में चोट आई, ओके, बट टॉम फेल आउट एंड हर्ट इज नी, ओके, लेकिन टॉम गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, ओके, सो इसलिए देयर इट्स मीन वहाँ वास मीन्स था, नो वन इट्स मीन कोई भी नहीं, ओके, लेफ्ट बट मी, ओके, लेफ्ट इट्स मीन बचा, बट मीन्स लेकिन, मी मीन्स मेरा, ओके, सो देयर वाज नो वन लेफ्ट बट मी, इट्स मीन कि इसलिए मेरे पास वहाँ कोई नहीं बचा था, ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव रेड दिस पोम, ओके, एंड स्टूडेंट्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पोम कि हमें बहुत अच्छे से खेलना चाहिए, हमें स्टर्स पे नहीं खेलना चाहिए, सीढ़ियों पे नहीं खेलना चाहिए, ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए, ओके, ये जो टू फ्रेंड्स हैं ना बहुत ही मिसचीफ्स हैं, बहुत ही मिसचीफ्स कर रहे हैं, बहुत ही शरारत कर रहे हैं, ओके, बहुत ही नॉटी बच्चे, और ये क्या करें, स्टर्स पे इन्होंने क्या किया है कि स्टर्स पे इन्होंने
अपने बैक बेडरूम के जो चेयर्स थी, ओके, पीछे के जो बेडरूम की जो चेयर्स थी उसे क्या किया इन्होंने, स्टेयर्स को पूरा फिल कर दिया। ओके, वी कैन सी, ओके, देखो चेयर्स सीधी है, कुछ उल्टी पड़ी है, ओके, नर्सरी पेल्स रखे, इस पे वाटर रखा, ओके, और सोफ़ा के पिलोज रखे, और ऐसे ही खेल रहे हैं स्टेयर्स पे। ओके, स्टेयर्स पे खेल रहे हैं तो टॉम जो होता है वो गिर जाता है और उसके नी पे हर्ट होता है, उसके घुटने पर चोट आ जाती। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पोम दैट कि हमें ना ऐसे स्टेयर्स पे नहीं खेलना चाहिए। ओके, स्टेयर्स पे नहीं खेलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से बैठ के, अगर आप कोई इंडोर गेम खेल रहे हैं, लूडो, कैरम, तो फ्लोर पे बैठ के, बेड पे बैठ के, अच्छे से बैठ के खेलना चाहिए। ओके, अगर आउटडोर कोई गेम खेल रहे हैं तो फील्ड में खेलिए, ओके, गार्डन में खेलिए, पार्क में खेलिए, लेकिन ऐसे स्टेयर्स पे या ऐसी किसी डेंजरस प्लेस पे जहाँ पे आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। ओके, और शार्प चीज़ें से तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, जो नुकीली चीज़ें होती है जैसे इन लोगों ने यूज़ किए यहाँ पे, आरी हो गया और नेल्स हो गई, कीले हो गई, तो ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। ओके, we should not play with these things, so saw and nails. Okay, we should not play with sharp things. Okay, हमें नुकीली चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे नाइफ हो गया, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई थिंग्स हो गई, ओके, और नेल्स हो गई, कीले हो गई, सा हो गया, आरी हो गया। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव read about this poem. We have read this poem and I hope you must have understood this poem and you have no problem in any stanza of this poem. Okay, and since turn your page forward, let's read about the poet. Since the poet of this poem is Robert Lucius Stevenson. Okay, since Robert Lucius Stevenson is the poet of this poem, A Good Play. Okay, तो एक अच्छा खेल या एक अच्छा नाटक के जो पोइट है, कवि है, वो है रॉबर्ट लूसियस स्टेवेंसन. So students, let's read about the poet Robert Louis Stevenson. Students, Robert Louis Stevenson was born in Scotland. Okay, तो students, रॉबर्ट लूसियस स्टेवेंसन का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में. ओके, ही रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. ओके, ही मीन्स उन्होंने, रोट मीन्स लिखी, रोट इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ राइट, राइट मीन्स लिखना, रोट मीन्स लिखी, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, ऑफ मीन्स का, एडवेंचर इट्स मीन्स साहसिक कार्य. ओके, तो स्टूडेंट्स, ही रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर इट्स मीन कि उन्होंने साहसिक कार्यों की कहानियाँ लिखी. ओके, तो रॉबर्ट लूसियस स्टेवेंसन का जन्म स्टूडेंट्स हुआ था स्कॉटलैंड में. इन्होंने एडवेंचर स्टोरीज राइट ऑन की. ओके, साहसिक कार्यों की कहानियाँ लिखी. हिज मोस्ट फेमस बुक इन ट्रेजर्ड आइसलैंड. ओके, हिज मीन्स इनकी मोस्ट फेमस, इट्स मीन्स सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक मीन्स किताब, इट मीन्स है ट्रेजर आइसलैंड. ओके, तो स्टूडेंट्स, ट्रेजर आइसलैंड इट्स मीन कि जो इनकी ट्रेजर आइसलैंड है वो सबसे ज़्यादा इनकी फेमस बुक है, सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध किताब है. ओके, एंड ट्रेजर आइसलैंड में स्टूडेंट्स होता है कोश द्वीप. ओके, ट्रेजर में स्टूडेंट्स होता है कोश या खजाना, एंड आइसलैंड मीन्स द्वीप. ट्रेजर आइसलैंड इट्स मीन कोश द्वीप या खजाना द्वीप. ओके, सो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट लूसियस स्टेवेंसन का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और इन्होंने एडवेंचर की स्टोरीज राइट ऑन की, साहसिक कार्यों की कहानियाँ लिखी, और इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर बुक है, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध किताब है, वो इनकी थी ट्रेजर आइसलैंड. ओके, सो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट द पोइट रॉबर्ट लूसियस स्टेवेंसन एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द पोइट. You have no problem in this topic about the poet. Okay, so students, now we are going to read and note down poem of this chapter 5 in our fire English literature notebook. So students, let's see, the name of this chapter 5 is A Good Play. हमें से good means अच्छा, play means खेल या नाटक. Okay, A Good Play it's mean एक अच्छा खेल, एक अच्छा नाटक. Okay, so students, poem it's mean कविता. Let's read this poem. We built a ship upon the stairs, all made of the back bedroom chairs, and filled it full of sofa pillows to go a sailing on the billows. Okay, वी मीन्स हमने, बुल्ट मीन्स बनाया, आ मीन्स एक, शिप मीन्स जहाज, अपॉन मीन्स पर, डिस्टेट्स मीन्स सीढ़ियों या जीनों. ओके, वी बिल्ट आ शिप अपॉन डिस्टेट्स इट्स मीन कि हमने सीढ़ियों पर एक जहाज बनाया. ऑल मेड ऑफ देखो, ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स. ऑल मीन्स पूरा, ओके, या सभी, मेड मीन्स बना हुआ था, मेड ऑफ मीन्स बना हुआ था, द बैक मीन्स पीछे, बेडरूम मीन्स बेडरूम या शयन कक्ष, चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ. ओके, ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर इट्स मीन कि सभी पीछे की बेडरूम की कुर्सियों से बना है. ओके, सभी पीछे की शयन कक्ष की कुर्सियों से बना. ओके, तो बेडरूम में जो चेयर्स रखे थे ना, उन्हीं से इन्होंने क्या किया, स्टेयर्स पे शिप बना दिया. ओके, जीनों पे, सीढ़ियों पर जहाज बना दिया है. ओके, एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सोफा पिलोज, और इसे फिल कर दिया है सोफा के पिलोज से. ओके, सोफा की तकिए से इसे पूरा भर दिया है. ओके, इस शिप को, जहाज को. टू गो आ सैलिंग ऑन दी बिलोज. ओके, टू गो मीन्स जाना, आ मीन्स एक, सैलिंग इट्स मीन या द मीन ऑफ सैलिंग दैट नौकायन ऑन दी बिलोस. ओके, बिलोस मीन स्टैंड्स होते हैं वेव्स, लहरों. ओके, टू गो आ सैलिंग ऑन द बिलोस इट्स मीन लहरों पर नौकायन करने के लिए जाना है. ओके, सो स्टैंड द पोइट ऑफ दिस पोम A Good Play is Robert Louis Stevenson. Okay, so student, now we are going to read and note down hard words of this chapter 5 in our fire English literature notebook. So student, let's see hard words. Hard word, it's mean cutting sound. Student, so first number hard word is back bedroom. B-A-C-K, back, B-E-D-R-O-O-M, room. Back bedroom, it's mean पीछे शयन कक्ष. ओके, पीछे का शयन कक्ष.
ओके बैक मीन्स पीछे, बेडरूम या सैंडकच, बैक बेडरूम इट्स मीन पीछे का सैंडकच. ओके स्टूडेंट्स जो सेकंड नंबर हार्ड वर्ड इज स्टैट्स, STAIRS. स्टैट्स में स्टूडेंट्स होता है सीढ़ियाँ या जीने. ओके STAIRS. स्टूडेंट्स और थर्ड नंबर हार्ड वर्ड इज पिलोस, PILLOWS. पिलोस में स्टूडेंट्स होते हैं तकिए. स्टूडेंट्स और फोर्थ नंबर हार्ड वर्ड इज बिलोस, BILLOWS. स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ बिलोस दैट waves. Okay it's mean लहरें. एंड स्टूडेंट्स ऑफ फाइव नंबर हार्ड वर्ड इज सेवरल, SEVERL. सेवरल में स्टूडेंट्स होते हैं मैनी, कई. ओके बहुत सारा. स्टूडेंट्स और सिक्स नंबर हार्ड वर्ड इज नर्सरी, NURSERY. नर्सरी. स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ नर्सरी दैट अ यंग चाइल्ड्स रूम. ओके एक छोटे बच्चे का कमरा. स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट सेवन नंबर हार्ड वर्ड इज इनफ. इनफ ENOUGH. इनफ मीन स्टूडेंट्स होते हैं प्लेंटी. ओके इट्स मीन कि बहुत सारा या पर्याप्त. ओके स्टूडेंट्स योर एट नंबर हार्ड वर्ड इज सैलिंग, SAILING सैलिंग. ओके एंड स्टूडेंट्स योर नाइन नंबर हार्ड वर्ड इज अलॉन्ग, ALONG अलॉन्ग मीन साथ में, साथ साथ. एंड स्टूडेंट्स योर टेन नंबर हार्ड वर्ड इज हर्ट, HURT. हर्ट मीन्स चोट लगना. एंड स्टूडेंट्स योर 11 नंबर हार्ड वर्ड इज नेल्स, NAILS. नेल्स मीन्स कीलिया. 12 नंबर हार्ड वर्ड इज पेल्स, PAILS. पेल्स मीन स्टूडेंट्स होते हैं बकेट्स. ओके बाल्टी. हियर द मीन ऑफ पेल्स दैट bucket. Okay buckets it's in baltiya. Okay and students your 30 number hard word is built, BUILT. built means banaya. Okay and students your last 40 number hard word is sip, SHIP. sip means charge. Okay so students we have read and note down hard words of this chapter 5 in our English literature notebook, and I hope you must have understood all these hard words of this chapter 5. Okay so students we have completed this topic. We have read and note down poem and hard words of this chapter 5 in our English literature notebook, and students I hope you have no problem in any topic, hard words or poem of this chapter 5. Okay so students today's your classwork is that note down poem and hard words of this chapter 5 are good play in your English literature notebook with your best handwriting. It's a today's classwork, and students your homework is that learn 4-line poem of this chapter 5 are good play from your English literature notebook. It's your today's homework, and students I hope you have no problem for learning well, because students I've explained this poem of this chapter 5 for good play. Okay so all students firstly complete your classwork, note down poem and hard words of this chapter 5 in your English literature notebook with your best handwriting, and send me your work here. Thank you.